poems as a young girl, painted well, and had illustrated and designed some alphabet books published by Frank Brothers in Delhi. She stopped writing by the time I was born, but she and her siblings were readers. We were bought books and comics as gifts and told stories by our grandparents, recalls Zaidi, who was chanting nursery rhythms and by the time she was 3 and reading independently by the time she was 6. Next up in the panel we have Sridhar Raghavan, who will conduct the conversation for the evening. A brief introduction about Sridhar Raghavan. He has had popular films scripted by, including Khaki and Bluffmaster, TV series written by him like Ahat and CID spanned over 640 episodes and 300 stories respectively. Sridhar's last assignment was co-writing Vikinian Arindal with Gautam Menon. He is currently in big demand and writing for Kunal Deshmukh, Rohan Sappi, Vikram Motwani, Saket Chaudhary, Puri Jagannath. Okay, so as you know him, this is the brief about him. And last but not least, the author himself, Mr. About Abid Surti, sir. A newspaper article on him says that if Spike Lee were to make a movie on Mumbai's ghettos and its famous residents, Abid Surti should be considered to author the screenplay. Born in Gujarat in 1935, Abid Surti is the author of over 80 books spanning across categories like fiction, poetry, theatre, reportage, and comics. He is the co-creator of Bahadur, India's first comic book superhero. His environmental activism has led him to be called a one-man NGO, especially when it comes to water conservation. Surti, Mr. Surti, he stays in Bombay, as we all know. And can I request Annie to please commence the event by reading and introducing us with the book. Just walk out a little bit and yeah, we just bring it. Mike's So my brother is going to release the book and do it properly. So we're going to figure out what that means, but ta-da, whatever. So you can all hear me. Great, I don't have to give any long speech, we'll just sit and chat. But first I'll just do the tearing open the cover and all that. क्या है ऐसा होता है Somebody is enjoying something. Trying to figure out. इधर ऑडियो नहीं मिलता है लाउड बॉक्स डालता था ना बताया नहीं खत्म होने के बाद बता रहा ना अभी खत्म काम हो गया तो
one sec. Before she starts talking about the, I mean, I thought that we a little, I didn't prepare anything to say, but I should say a few words at least. So I'm just happy to be here because when I was called for this and I have not met Abid sir for a very long time. I've not met him at all. I just know him from his work, you know. And so we're all fans of Bahadur and when Bahadur first came out, I mean, he had to fight not just dacoits but also had to fight, you know, because we all were from Phantom and Mandrake and that generation, and that went off and this came in. So initially I used to be like, what's this, and slowly it started winning us over, you know. So about this book, I mean, I began reading it yesterday and I've finished about more than half of it. So I will not talk too much about the book, but we'll discuss about the book and so on. But it's whatever I've read so far, it's fascinating and it's like a Eastman color documentary on smuggling in the 60s and 70s. So I think we should just start the book. It's based on it's based on his friendship. All that will be there about the book. But what for me is fascinating is, as I'm reading it, I'm suddenly thinking, is it for real or is this fiction or is it fact kind of a thing? And both the stories are so riveting that, I see a lot of filmmakers here, so I'm sure it's going to be in somebody's eyes. Okay. Sorry? Okay, over to Annie. Okay, so this book is, all of it, it is quite unputdownable. Actually, literally unputdownable. The section I've picked to read out is from, for those of you, just to set some context here, this is a part memoir, part biography. It's based partly on Abid's own life. It's his own story, a memoir. And running parallel to that is the story of this gangster. His real name was Iqbal, but everybody called him Sufi for whatever reasons. You'll read the book and find out. The section I'm picking out is a section where Sufi is in the middle of a smuggling operation. He's quite young, and typically why I picked it out is that we hear a lot about smugglers and their conflicts with the law. We don't hear much about what smuggling actually is like. What does it feel like to be a smuggler? With the newspapers, कि भाई उसने कहा कि फला तारीख को हमने ये यहाँ से स्मगलिंग इतना सारा गोल्ड लेके वहाँ पहुँचे, तो कहीं न्यूज़ में कहीं तो उससे मैं पूछ लेता था, बोले हाँ दिस वॉज ए बिग न्यूज़, तो चेक करो, डबल चेक करो. तो ये सारी जिंदगी मैंने देखी थी डोंगरी में. My uncle, he was a one-man NGO like social worker. तो दाऊद के फादर हमारे घर में आते थे मशवरा करने के लिए. At that time I was 6-7 years. The first Don of Bombay, at that time we used to call Bombay, now Mumbai. तो first Don of Bombay, he used to come, करीम लाला, वो भी आकर बैठता था वहाँ मशवरा करने के लिए. कभी सभी इकट्ठे हो जाते थे, सारा ग्रुप वहाँ. तो मुझे कुछ इंसिडेंट माइंड में सेट हो गए थे कि दाऊद का जो फादर जो है वो he was one of the top police officer and fighting crime ब्रिटिश पीरियड में. और जब पार्टीशन हुआ तो he was very much disturbed कि अब because the feeling that was created at that time, partition ने जो feeling create की वो ये थी कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है. ये फीलिंग क्रिएट हुई थी. तो थोड़ा सा वो एनिमोसिटी बढ़ती जा रही थी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे. तो ही यूज्ड टू कम एंड कंसल्ट माय अंकल. तो मेरे अंकल ने कहा कि एक काम करो, कई जगह खाली हो गई है, कुछ लोग माइग्रेट कर गए पाकिस्तान, तो उनकी जगह खाली पड़ी है और बहुत सस्ते में मिल जाएगी, तो आप वो जगह ढूंढिए और कोई नया काम शुरू कीजिए. तो दाऊद्स फादर फाउंड वन प्लेस और उसने वहाँ हेयर कटिंग सैलून शुरू की. ये इतना मुझे याद है. उसके बाद में उसकी हेयर कटिंग सैलून चली नहीं चली ये पता नहीं है, लेकिन एट दैट टाइम दाऊद कंचों से खेलता था. इज दैट ओके? So, but other than the fact that
both of you all are from Dongri, the wives in common. Is there a thematic link also to the lives? थीमेटिक लिंक भी मेरे जहन में थी और बहुत खूबसूरत लिंक थी वो, जो मुझे अपील कर गई कि आई यूज टू बिलीव एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट वॉट एवर आई एम डूइंग, ये मैं कर रहा हूँ. अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल. इसमें खुदा या भगवान ईश्वर कहाँ से घुस गया? दिस इज द वे आई यूज टू थिंक. और इकबाल जो था उसकी सोच, ही वॉज ए 100% मुस्लिम. अगर उसका दो साइड कॉइन की जैसे दो साइड, दो पहलू होते हैं, तो उसका एक पहलू ये था कि ही वॉज ए परफेक्ट मुस्लिम. और वो जो था वो ये जस्टिफाई करता था कि कुरान शरीफ में लिखा है कि मेरी मर्जी के बगैर, खुदा ने लिखा है कि मेरी मर्जी के बगैर पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता. तो इकबाल कहता था मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ, ये किसकी मर्जी से कर रहा हूँ? तो ये ट्रैक जो है, और मैं कहता था जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी मर्जी से कर रहा हूँ, और जिस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरी मर्जी से बढ़ रहा हूँ. तो ये जो थॉट प्रोसेस दोनों के थे, ये बार बार उसमें रिपीट हो रहे हैं. फिर एक बार वही बहस होती है, फिर एक बार मैं जवाब देता हूँ उसको. एक मुझे किस्सा उस किताब में मैंने दिया है कि औरंगजेब के दरबार में एक पंडित आ गए. पंडित ने किसी ने पंडित का परिचय करवाया कि ये पंडित जो है वो आपका भविष्य बता सकते हैं. तो औरंगजेब ने कहा बताइए आप क्या है. तो उसने, पंडित ने उसका भविष्य बताया कि भाई ये होगा, ये होगा, ये फ्यूचर में आपके साथ ये होगा. फिर औरंगजेब ने उससे पूछा कि अब तू अपना भविष्य बता. तो पंडित ने अपना भविष्य बताया. औरंगजेब ने पूछा तेरी उम्र कितने साल है? उसने कहा कि मैं अभी भी 20 साल और जीने वाला हूँ. औरंगजेब ने तलवार निकाली, उसकी गर्दन उड़ा दी. So this is the way we used to argue. मेरी आर्ग्यूमेंट होती थी, उसकी आर्ग्यूमेंट, वो अपनी आर्ग्यूमेंट लेकर आता था. तो ये जो कंटिन्यूअस लिंक जो चली है वो बड़ी खूबसूरत है. आई लव दैट लिंक माई सेल्फ. There is another link, sir, of destiny also, which comes into play through the book. Sorry. हाँ जी. There is, now for example, sir, I want to talk about your career as a cartoonist. Right. Okay, how you got into cartoonist, because there is a strange series of events which happen here. But if you can just talk about that, then the train. कार्टून, या हमारे, जैसे मैंने कहा कि इकबाल और मैं, हम दोनों एक ही एरिया में रहते थे. दोनों की हालत बहुत खस्ता थी. फुटपाथ पर हम लोग कुछ ये चूरन की गोलियां और बेर और ये लेकर बेचने के लिए हम लोग बैठते थे. किसी तरह सपोर्ट करना था. तो एक जरिया ये भी था बेगिंग का. तो ग्रुप बनाकर भीख मांगने निकलते थे हम लोग. तो जो उस दौर में जो ट्रेनें चलती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 1944-43, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जहाज भर भर के सोल्जर आ रहे थे और डॉक में उतरते थे. वहाँ से छोटी सी ट्रेन की पटरी थी बम्बई में उस दौर में, जो वीटी स्टेशन तक, डॉक से वीटी स्टेशन तक. तो वो पटरी में सोल्जर जो डॉक में उतरे, जहाँ वो ट्रेन में बैठे, वीटी स्टेशन तक आए और वहाँ से मेन लाइन से बर्मा, कलकत्ता से होकर बर्मा, उस रास्ते से निकल जाते थे. तो वो जो ट्रेन जो थी, आज के हमारी माथेरान की जो ट्रेन है, जो बड़ी स्लो चलती थी, वो बच्चे लोग भी आते हैं, सर ये खरीद दो, ये सेम हालत हम लोगों की थी. हम ट्रेन के साथ दौड़ते थे. वो सारे सोल्जर ब्लैक और वाइट, निग्रोज और ब्रिटिश अमेरिकन सोल्जर. तो हम लोग दौड़ते थे, सर गिव अस वन सैंडविच, सर गिव अस वन चॉकलेट, सर गिव अस वन. इसी तरह उस ट्रेन के साथ दौड़ते थे हम लोग. तो एक बार किसी ने, कोई एक ब्लैक सोल्जर था, उसने कॉमिक फेंक दिया. तो हम लोग समझे शायद कॉमिक के अंदर कुछ चॉकलेट का पीस होगा, क्या होता. सब टूट पड़े. तो किसी के हाथ में आधा पन्ना आया, किसी के हाथ में एक पन्ना आया, किसी के हाथ में 4 पन्ने आए. लकीली मेरे हाथ में एक पन्ना आ गया. कॉमिक मिकी माउस का था. और मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो मैं भी बना सकता हूँ.
देन आई स्टार्टेड कॉपिंग मिकी माउस, जितने भी थे कॉमिक के एक पेज में, उसके अलग 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 करके मैंने करीबन 50 स्केचेस अलग अलग बनाए उसके। तो ये दिस वाज द टेक ऑफ पॉइंट। तो यहाँ से मुझे लगा कि कार्टून में मैं कुछ कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड डूइंग ओरिजिनल। ये कब की बात, जब मैं स्कूल में था, दैट इज़ अराउंड 10th तक आते आते कुछ सेटिंग हो गया दिमाग के अंदर कि भाई कार्टून बनाना इस तरह बना सकते हैं हम। तो पहला कार्टून बनाया तो कुछ लोग मेरे साथ अच्छे लोग भी जुड़ गए थे, तो उन लोगों ने मुझे गाइड किया कि तो यार तू तो बहुत अच्छे बना रहा है, व्हाई डोंट यू सेल। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी, मैंने कहा कहाँ जाऊँ बेचने की, मुझे कुछ पता ही नहीं है। ग्रोइंग अप ऑन द पेवमेंट, अब टाइम्स ऑफ इंडिया में जाओ, यहाँ जाओ, तो टाइम्स का तो नाम ही नहीं सुना था मैंने। तो ये इन हालातों में मैंने स्कूल में स्काउट ज्वाइन किया था। स्काउट का बड़ा मूवमेंट बहुत अच्छा था उस दौर में, और स्काउट में एक दिन आता था खरी कमाई डे। इट वॉज ए ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, पता नहीं क्यों बंद हो गया। उस रोज हर बच्चा अपनी कमाई किसी भी तरह, चाहे नकली फूल बनाकर बेचकर घर लेकर आना है उसको, कोई बच्चा शू शाइन करने बैठ जाता था फुटपाथ पर, तो हर बच्चा अपना अपना जो भी कुछ उससे होता था वो करता था, पैसे लेकर घर पहुंचता था, माँ के सामने पैसे रखता है, माँ खाना दो, मैं पैसे दे रहा हूँ। तो ये इट वॉज ए ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड मेकिंग अस प्राउड। एनीवे, तो मुझे लगा कि भाई मुझे शू शाइन बॉय बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये भी करने की ज़रूरत नहीं है नकली फूल बनाओ और बेचो, प्लीज़ बाय 1 फ्लावर, आई कैन सेल माई कार्टून्स। तो 2-3 लोगों ने पसंद किए थे, तो लेकर मुझे किसी ने कहा देखो टाइम्स ऑफ इंडिया डोंगरी से इट इज़ 10 minutes वॉक, आप वहाँ जाइए, एडिटर से मिलिए और आपका कार्टून दिखा लो, देखो बिक जाता है कि नहीं बिकता है। तो मैं तो गया स्काउट के ड्रेस में, विसल लगा कर, और वॉचमैन जो गुरका बैठा हुआ था बाहर, उससे कहा कि भाई एडिटर से मिलना है। वो चले जाओ, देखो केबिन है ना वहाँ, वो बैठा हुआ है, जाओ वहाँ। आज का देखो आज कितनी सिक्योरिटी से गुजरना होता है। तो मैं तो गया सीधा, जाके अंदर घुस गया, टेबल पर कार्टून रख दिया, उसने देखा, ही स्माइल, अप्रूव्ड। दैट वाज द फर्स्ट कार्टून आई सोल्ड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद तो फिर कतार लग गई, मतलब। आइए आगे। No, it's actually very interesting. Just as an aside, the soldier drops a comic. He gets a bit of the comic. He starts drawing, gets into cartooning. In school, he meets a friend. This is all there in the book. He meets a friend who tells him, whatever you're drawing, there's somebody who paints and he draws canvases this big. He goes there, meets a new mentor, gets into art. So it's actually that single moment of begging and a train, a comic falling, destiny plays a pretty deadly route. So, Right, yeah. very true. Now I believe in destiny. And destiny is a theme which is actually constant throughout the book also, wherever you read it. Other than that, sir, I'm actually curious about, so this is, one hat he wears is of an artist, a painter, a cartoonist. The other hat he wears, which is a very wide hat, it's as a writer. But now most people in our business, you become a writer to get into the film business. You got into the film business first, sir, and then you became a writer out of boredom. So I'd love you to just talk a bit about your stint with the film business, how it began. Film business or how I started writing? Right, okay. कॉलेज में था, पहला प्यार था, और जब पहला प्यार टूटता है तो जो झटका लगता है तो बड़ा जबरदस्त होता है, उसके बाद में फिर आदत हो जाती है। तो जो पहला प्यार टूटा, तो आई वॉज ए इंट्रोवर्ट, कोई मेरा दोस्त नहीं था जिसके पास जाके मैं शेयर कर सकूं कि भाई मेरी ये तकलीफ है, ज़रा मेरा किस्सा सुन ले तू। अगर कोई मिल गया होता तो मैंने उसको सुना दिया रहता है। तो जब कंप्लीट किया तो वो अंदर आया कमरे में, क्या अभी क्या लिख रहे हो तुम? मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या है, ले तेरे को काम बेच दे, जो भी पैसा है थोड़ा मेरे को देना। कबाड़ी वजन से कागज़ बेचता था, तो मैंने पूरा उसको दे दिया। अच्छा, वो उसने गलती ये की कि वो पढ़ने बैठा वो क्या लिखा है,
वो पढ़ा तो ऐसा हुक हो गया कि वो जाकर वो पब्लिशर से मिला, उस पब्लिशर से कि जो लिटरेचर की किताबें छाप रहा था। ये वॉज नॉट ए पल्प फिक्शन और नहीं कर रहा था, गुजराती में वन ऑफ द टॉप पब्लिशर स्वाति प्रकाशन। तो उसकी किताबें वैसे ही बिकती नहीं थी, तो बिकती नहीं थी इंटरेस्टिंग ये है कि बिकती नहीं थी तो वो इस कबाड़ी को देता था कि भाई तू फुटपाथ पे बेच इसको तो ये लिंक चलती थी। तो उसने जाके उसको बताया कि भाई देखो ये मैंने पढ़ा है, ये इसको ज़रा तू भी एक नज़र डाल दे। इमीडिएटली ही कॉल्ड मी विद इन 1 वीक पब्लिशर, और मुझे 500 रुपये कैश दिए कि वी आर गोइंग टू पब्लिश दिस। दैट वॉज द बिगेस्ट ब्रेक। ही वॉज द बेस्ट पब्लिशर, टॉप मोस्ट गुजराती। जैसे आज हमारा पेंगुइन जो है, कि अगर पेंगुइन में कोई किताब आती है तो आपका रिस्पेक्ट थोड़ा एक ऊपर हो जाता है, एक कदम। तो उसमें आने से ये ब्रेक थ्रू मिला। अच्छा, अब मैं फिल्म लाइन का, बॉलीवुड का, In Shakti Samanta, like you were reading Devdas, na? राइट। स्कूल के दिन खत्म हुए, कॉलेज में जाना था, तो फैमिली वालों ने कह दिया भाई पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, तुम देख रहे हो कैसे घर गुजर बसर हो रही है, तो अगर आपको कॉलेज में जाना है तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन रिसोर्सेज। जो भी खर्चा है कॉलेज का, आई वांटेड टू गो टू जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो आज जे कॉलेज ऑफ आर्ट हो गई है, और उसमें जाने के लिए तो मैं सोच में पड़ गया पैसा कहाँ से आएगा, फीस देनी थी, फिर कैनवास के कलर्स के सारे एक्सपेंसेस जो थे माथे पर थे। तो एक दोस्त मिल गया मुझे। अच्छा, मैं कोई ऐसी जॉब चाहता था कि जहाँ मुझे काफ़ी फ्री टाइम मिले, तो 10 to 5 की नौकरी मैं नहीं कर सकता। तो वो उस दोस्त फिल्म लाइन जॉब दिलवाता हूँ। I love that. Sorry. Sorry, please. वहाँ 24 आवर्स काम नहीं है, जिस दिन शूटिंग होती तो उस दौर में जो शूटिंग होती थी, एक दिन में एक प्लान कर लो, ये कर लो, कंप्लीट करना है। इनमें जो Shows there's a whole generation of gangsters that you know about. Ramaswamy, Kapadia, and all these people, which is pre-Haji Mastan also and stuff. Then it shows you Haji Mastan and all those youngsters. I was curious, even when Haji Mastan reaches his peak, your book mentions that they were all pawns actually. K. Chamadia's family, and there's also DK. So I was wondering if you could talk about जो अखबार में हमारे सामने आता है, तो वी स्टार्ट बिलीविंग इट। जैसे आज भी वही हो रहा है। अभी चिदम्बरम का देख रहे थे, वहाँ भी यही हो रहा है, तब पहले भी वही होता था। सेम सिचुएशन, किसी पर लेबल लगा दिया कि भाई ये स्मगलर, तो वो लेबल इसलिए लगता था उस पर कि वो फिजिकली वहाँ इन्वॉल्व था, लेकिन जो उनके मास्टर जो थे वो तो कभी सामने आए ही नहीं। एंड रियल स्मगलर्स वो थे, ये तो कैरियर्स थे। हाजी मस्तान वाज ए कैरियर। उसके साथ जो भी छोटे मोटे जो जुड़े हुए थे, नाम भूल रहा हूँ, उस दौर के हाजी मस्तान के साथी दिलीप अजीज जो थे, वो सारे कैरियर थे, लेकिन उनके नाम, और स्पेशली जो बैक में रहते थे, पीछे जो इनके थे, वो इनके नाम उछालते रहते थे ताकि उनका नाम बीच में ना आए। जैसे एक मैं नाम ले नहीं सका, तो उसमें मैं डीके करके मैंने लिखा है कि डीके, तो पीपल आर क्यूरियस कि भाई ये कौन, ये डीके कौन था। वो वाज द बिगेस्ट मास्टर ऑफ ऑल द गैंगस्टर्स। तो डीके का मैं नाम नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि बहुत बड़ा शख्स था, लेकिन मैं कुछ हिंट दे सकता हूँ कि डीके को अगर आप केडी कर देते हैं, एंड ही वाज द सन ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर
इसके आगे नहीं कहता, जस्ट गो ऑन गेसिंग। The book is riveting, huh? That particular section of the kingpin is behind the whole thing. Superb. The Chamadia gang, all these people that you mentioned there. अभी एक हाजी मस्तान ने पार्टी रखी थी, अब मैं देखा बता रहा हूँ कि करोड़ों रुपए बनाकर क्या हाल होते हैं। हाजी मस्तान ने भी बना लिए करोड़ों, उसके बॉस ने भी बना लिए, सबने बना लिए। तो एक पत्रकारों की पार्टी थी, तो किसी ने मुझसे कहा चलो अभी मजा आएगा, चल देगा। तो आई जस्ट वेंट देयर। तो दस्तरखान जो था, टेबल जो था, उस पर हर डिश, चिकन, ये वो, चाइनीज, जापानीज, जो भी था सब था। और रोटियां जो थी वो ये अपने बादाम पिस्ते से बनी हुई। तो किसी पत्रकार ने गलती की पूछने की, तो गेहूं की रोटी नहीं है। हाजी मस्तान ने कहा वो भिखारी लोग खाते हैं, ये सामने वाली बात है। वो मतलब गरीब लोग जो एकदम झोपड़पट्टी वाले जो होते वो खाते हैं। और वो क्या खा रहा था, मेरी नजर उस पर थी। वो थोड़ी सी दाल और इतने से चावल। उसकी किस्मत में ये कुछ नहीं था, कहीं उसको पाइल्स, अल्सर, 50 बीमारियां लग चुकी थी और सब बेकार हो गया। तो मेरा कहना है करोड़ों रुपए कमाना, इज इट वर्थ इट? अगर आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो क्या मानेगा? करोड़ों की कोई माने नहीं। मेन थिंग मेरा जो सिद्धांत है, इट इज हैप्पीनेस। जो भी हैप्पीनेस संसार में है, अगर वो आप पकड़ नहीं पाते हैं तो फिर आपको अल्सर, पाइल्स, कैंसर ये सब चिपकेगा। There's one other thing, sir. There was also like a threat to your life, right, from the underworld because of the book. So he got attention in quite an intriguing way. He got a death threat. So if you can elaborate on that, sir. पुरानी बात है कि दाऊद की गैंग, वो हमारे सूफी या इकबाल, जो जिसको हम लोग सूफी कहते हैं, उसकी तलाश में थी। और वो कहीं कुछ गड़बड़ी की उसने गैंग के साथ में और गायब हो गया था। तो गैंग वाले मेरे पीछे पड़ गए, क्योंकि उनमें से किसी ने किताब पढ़ी थी, किसने पढ़ी थी मुझे पता नहीं है, और वो जानते थे कि मैं पता बता सकता हूँ उसका। तो पूरी गैंग मेरे पीछे, फोन पर फोन आ रहे दुबई से कि बताते हो या नहीं, पता मतलब मैं थ्रेट ये वो सब। मैंने कहा भाई मैं जानता नहीं हूँ। तो बोले नहीं आपको बराबर पता है वो कहाँ है। अल्टीमेट फिर मैंने उनको लताड़ना शुरू किया, आप कर लो जो करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, अब संभल के निकलना घर से बाहर। ये यहाँ तक थ्रेट पहुंची तो मैंने बीवी बच्चों से कहा अब भागो यहाँ से, जब तक मामला शांत नहीं होगा हम लोग वापस नहीं आ सकते। तो वी लेफ्ट आवर हाउस, स्टेड विद कजिन, और काफी दिनों तक वहीं रहे। तो ये बिकॉज ऑफ द बुक। So a gangster read the book and then decided the right time to go after the writer to locate the other character in the book, which I found quite funny. So I'm going to, like give it open to the audience for Q&As. I've got one last question which I want to ask. Right. The title character of this book is Sufi, Iqbal. Correct. Have you been in touch with him? Where is he? Because he, I'm just curious. When did you last meet him? What happened to him after the book? किताब छपने के 89-90 में पहला एडिशन आया। It first came in Gujarati, then Hindi, and now is the English translation. यदि क्या इसको क्यों आता है, बोले नहीं उसका मन यहाँ लग गया है, कब्रों में, कब्रस्तान के अंदर, तो वो यही बैठा रहे। व्हाट आई मीन टू से कि ही मस्ट हैव रियलाइज्ड अल्टीमेटली दिस इज माय प्लेस। चाहे मैं करोड़ों बना लूँ या लाखों या जो भी कर लूँ, मतलब हीरे मोती जवाहरात, लेकिन मुझे यहीं आना है। सो द टाइटल सूफी वॉज फिटिंग ऑन हिम। अच्छा टाइटल मुझे कहाँ से मिला था? जब मैं ये लिखना शुरू किया था ये नॉवेल, तो वो हम लोग बांद्रा में, वो भी बांद्रा में रहता था, मैं भी बांद्रा में था। तो मेरे घर एक बार वो आया
और हम लोग गपशप लड़ा रहे थे, तो वो इस्लाम पर बातें करने लगे और ऐसी बड़ी बड़ी बातें उसने सुनाई इस्लाम, प्लस वो ओशो का भी भक्त था वो। तो इस्लाम पर उसने जो जो बातें बताई कि भी कब्रिस्तान जो है वहाँ, उसकी बीवी ने कहा कि चंदा दो कब्रिस्तान की, हमारे शिया कौम के कब्रिस्तान की हालत बहुत बुरी है, तो उसके लिए चंदा चाहिए। उसने कहा मैं चंदा देता हूँ, कितना चाहिए आपको, कितने लाख चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है जो इस्लाम ने लगाई, जो कोई मानता नहीं। बोले कंडीशन ये है कि कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए, संगे मरमर की ताजमहल नहीं होना चाहिए। तो पहले वो सारे ताजमहल तोड़ो कब्रिस्तान में और मेरे पास से 10 लाख रुपए ले जाओ। अब ये बातें जो है आजकल कोई मुसलमान भी नहीं जानता कि इट इज फॉरबिडन। आप सिंपल कब्र बनाओ मट्टी की और मट्टी के साथ अंदर चले जाओ ताकि औरों के लिए जगह बने। तो ये सारी बातें जो मेरी अम्मी जो थी, मेरी मदर जो थी, दूसरे कमरे में बैठी थी, वहाँ दूसरे कमरे में वो लेटी थी, वो सुन रही थी सब। जब वो गया तो अम्मी ने कहा कि कौन सूफी है? Sufi, the great Abid Sufi. Well, when you read the book, I mean, it's full of, I mean, characters who would, I mean, make a terrific film and situations. So I remember one today I was trying to finish the book before I came, I couldn't. But there was one sequence जब वो जाता है to get those 2 jackets. वो जो those 2 jackets. I mean, मैं वहाँ पढ़ रहा था तो it's like, you know, riveting kind of a read, you know, and it's in between just first to tell a thick such story. तो दूसरा हमीद का भी story में 500 रुपया तो मैं निकाल दूंगा उसको. तो ये कैसे होगा, you know, how is this guy going to crack all these things? You know, बोल तो रहा है कि somebody who is going to be, I mean, is under death, yeah, he's going to be executed. And the lawyer is trying to find, lawyer is charging with 50,000 per session in that time. And his friend says कि मुझे 500 रुपए चाहिए मैं निकाल दूंगा उसको. And he also gives back change. You know, जो बचा हुआ money. So stuff like this. I mean, yes, there is a, I mean, it's a film, a series overall. I mean, but I would like to ask, I mean, I wonder who would you like to play yourself? I haven't thought about it. So we are expecting a film on him. There is material for more than a first day. Okay, congratulations, sir. Netflix और हमें भी दुआओं में याद रखना. Thank you. Any other questions? सर आपने बताया कि आपको 3 मेंटर्स मिले। जी, इतने तो लकी आपके दोस्त भी नहीं थे, लेकिन अगर आप सबको कोई एक मैसेज देना चाहो कि ये आप अपना गुरु मंत्र मान के चलो, तो आप क्या बोलोगे? गुरु मंत्र मैंने पहले ही बता दिया है, थोड़ा एलोबरेट उसे कर देते हैं कि अगर माइंड पॉजिटिव है और इफ यू नो दैट अल्टीमेटली हम जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, आज जो लोग भी काम कर रहे हैं अल्टीमेटली काहे के लिए कर रहे हैं, फॉर हैप्पीनेस, वरना करने की क्या जरूरत है। अगर मैं दुखी होता हूँ और मैं करता चला जा रहा हूँ तो जिंदगी भर दुखी रहूँगा। एक बड़ा मशहूर किस्सा है एक सूफी का, ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और मज़े से अपनी बांसुरी बजा रहा, तो वहाँ से टाटा की गाड़ी गुजरी। टाटा ने देखा कि स्टोरी लीजिए, मैं टाटा का नाम ले रहा हूँ, उसमें कोई नवाब का नाम था। तो टाटा ने देखा कि हट्टा कट्टा है, पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहा है, अगर देश में अगर ये कुछ करे तो देश कितना जल्दी आगे बढ़ेगा। तो गाड़ी रोकी, उसके पास गए, उसे कहा कि देखो यू आर हेल्दी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़े से आप बांसुरी बजा रहे हो, व्हाई डोंट यू डू सम वर्क, तुमने क्या काम करो। तो बोले आइए आप हमारी कंपनी में, प्यून की जगह खाली है, चौकीदार की जगह खाली है, चौकीदार की। तो अच्छा फिर क्या होगा, चौकीदार बन जाओगे। तो बोले आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप आगे और आगे बढ़ेंगे, आप हेड ऑफ द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बन जाओगे। देखो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में आप यानी कि और प्रोग्रेस करेंगे, फिर आप चुनाव में हमारे जो होंगे उसमें खड़े रहेंगे, यू विल बी द डायरेक्टर, देन यू विल बिकम द हेड ऑफ द होल यूनिट एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड।
उसने कहा वो तो मैं अभी हूँ, तो ये चक्कर में क्यों पड़ूँ? So this is the message that whatever we are doing it for happiness. और उसका फॉर्मूला सिंपल है मेरा, बी ट्रांसपेरेंट, बी ऑनेस्ट एंड बी पॉजिटिव। अगर ये तीन चीजें आप में आ गई तो दुनिया की कोई बीमारी आपको छूने वाली नहीं। यू बी सरप्राइज टू नो कि आखिरी 30-40 साल का मुझे याद है कि मैं कभी बीमार हुआ ही नहीं। सारे बम्बई में कंजंक्टिवाइटिस आती है, सबकी आंखें लाल, चश्मे वाले घूम रहे इधर। मेरे जैसे चंद लोग हैं कि जिनको आज तक कंजंक्टिवाइटिस ने भी छुआ नहीं। तो ये सिंपल, कोई इसमें खर्चा नहीं है, कहीं जिम में जाके वजन उठाना नहीं है आपको, इजीली अवेलेबल है इफ़ यू वांट। इसमें गड़बड़ कहाँ होती है, सॉरी जरा एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, कि जैसे लड़के लड़कियाँ आजकल के जो जब 10th कंप्लीट करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं अगर मेडिकल में जाऊँ तो मैं इतने कमा पाऊँगा, अगर मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ तो मुझे इतने लाख मिलेंगे। तो ये सोच जो है ना वो गलत है। भाई आपका मन क्या चाहता? मेरा मन चाहता है मुझे कारपेंटर बनना है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि नहीं यार तू डॉक्टर बन जा। तो अगर वो कारपेंटर बनता है तो ही विल गेट द मैक्सिमम हैप्पीनेस, प्लस ही विल गेट मनी ऑल्सो। उसकी रिक्वायरमेंट जितनी है उतने पैसे उसको कारपेंटर में मिल जाएंगे। वो कोई मोची बनना चाहता है तो मोची बनेगा तो वो भी बड़ा कमाल कर जाएगा, उसके अंदर डिजाइनिंग नई नई क्रिएट करेगा। तो सबके अपने अपने फील्ड जो है, अपनी अपनी पसंद, फील्ड से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर मोची ही बना रहे। अगर मोची है और उसमें ये सोच है कि मुझे उसको इंजीनियरिंग की कुछ पिछले जन्म का कुछ चक्कर होता है जिसमें कुछ कर पाते इंजीनियरिंग के अंदर, तो कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ने का पूरा हक है। जैसे हैदराबाद का जो नवाब था, लास्ट नवाब, ही वॉज अ मैकेनिक, उसको लाख समझाया सारी फैमिली ने, अरे भैया तू नवाब का बेटा है और कार के नीचे घुसा हुआ है, एक स्क्रू टाइट कर रहा। अल्टीमेटली ही डाइड एज अ मैकेनिक, लेकिन वो कभी नवाब बना नहीं। तो ये मतलब सिंपल लॉजिक है कि जो आपका मन चाहता है आप वो करो, यू विल गेट हैप्पीनेस एंड मनी विल फॉलो। एक रेट रेस में मत फंसो। रेट रेस में नहीं फंसने का मेरा मतलब है कि मैंने आई लिव अलोन, ये तय कर लिया कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है लाइफ की। 1 महीना जिंदा रहने के लिए मुझे कितने रुपये चाहिए, पता चला 15,000 में आराम से आई कैन लिव वेरी हैप्पीली विद 1 बाइसिकल। तो अब ये लिमिट हो गया ना। अगर मेरे पड़ोस में BMW आई है तो मेरे पास रॉल्स होनी चाहिए तो मारे खत्म। सो आई कैन लिव, सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड आई, लेकिन हैप्पी पर्सन कैन लिव एनीवेयर इन एनी कंडीशन। कोई मुझे महल में बिठा देगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, झोपड़ी में डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हैप्पीनेस इज विथ मी। अल्टीमेटली वी ऑल वांट हैप्पीनेस, नॉट क्रोर्स। जैसे हाजी मस्तान की जो हालत हुई है वो आप लोगों ने देखी कि पैसे के चक्कर में ही वो सब खोया ना उसके साथ। एनीथिंग एल्स प्लीज? We've talked about this one book and this is a great book, लेकिन आपका book, and sir is here in case any of you would like a copy, sir. Thank you so much for everything on behalf of all of us over here. Thank you. दादा आप मोबाइल थोड़ा पीछे लो ना। सिद्धांत यू गेटिंग अ फ्रेम? ओके यप let's take a picture first. Yes, everybody in the center camera. सर रुकिए क्या कर रहे थे? Show the book here. Like the Judwa version.
किधर जा रहा सतेंद्र? सर यहाँ पे मैम यहाँ पे चल चल करता हूँ कि as long as you are deep down happy inside, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Just work hard and do your thing. बाकी मतलब वही वो जो उनका एटीट्यूड है वो मैं मतलब बहुत उससे इंस्पायर्ड हूँ. नहीं यार हमको तो सब अभी मैं आजकल उतना नहीं पढ़ता हूँ जितना मैं पढ़ता था क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है. लेकिन आई राइट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स मतलब फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों पढ़ता हूँ. एंड दिस वन इज लाइक मतलब जैसा हम लोग जब कॉलेज में था गॉडफादर जब पढ़े थे ना जब कैसा एक पूरा एक लाइफ एक हीरा एक हमारे सामने आता है इस टाइप की किताबें हैं. तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में आई है तो अभी बहुत लोग पढ़ सकते हैं. ओके सर आपने जैसे कहा कि वैसे इस पे बहुत ही अच्छी स्टोरी है तो मूवी भी बन सकती है. तो ऐसे कौन जो है जो कैरेक्टर्स ये प्ले कर सकता है इन सोफी? ये दोनों कैरेक्टर्स इसमें मजेदार है. तो मुझे अभी तक मैं कास्टिंग का मैं उनसे पूछा मैंने कि वो कौन किसको चाहेंगे अपना रोल प्ले करने के लिए. लेकिन मैंने अभी तक सोचा नहीं. लेकिन इट्स एनी एक्टर वुड कैन गिव हिज राइट आर्म फॉर दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. सो उनको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है. सो व्हाट्स नेक्स्ट मेरा काम चल रहा है स्क्रिप्ट चल रहा है. अभी एक वॉर फिल्म पे एक स्क्रिप्ट चल रहा है वो अभी खत्म हो जाएगी. इस साल के आखिर हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. अरे मैंने ऑलरेडी कल बोल दिया. हमारे दूसरे इसमें फंक्शन में बोल दिया ऑलरेडी उसके बारे में. अभी मुझे यहाँ उसके बारे में मत पूछो. यहाँ मैं किताबों के बारे में पूछो. हाँ बुक तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है पर आबिद मैं उनको अंकल बुलाती हूँ और मुझे लगता है उनकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. और मुझे लगता है कि एवरीवन शुड रीड दिस बुक एंड गो थ्रू द जर्नी. अभी आपने भी शायद सुना होगा उन्होंने जितनी सारी उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में बोला है और इट्स वेरी इंस्पायरिंग और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आबिद अंकल के पास. मैं उनको इसके अलावा एक वाटर हीरो के इससे भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि वो काफ़ी पानी के ऊपर काम करते हैं और मैं भी थोड़ा बहुत पानी के ऊपर काम करती हूँ. तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी वक्त साथ में बिताया है और मेरी जितनी भी समस्याएं मैं हमें उनके पास लेके जाती थी कि अंकल ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है और वो उन्होंने हमेशा मेरी समस्या को सुना है. और बस यही बात बोल रहे थे जब अभी यहाँ बोला है कि हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा तुम बस पेशेंस रखो. तो आई थिंक वो एक होता है ना एक मेंटर एक ऐसा इंसान जो आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हो और आपको समझने के लिए तैयार हो. ऐसे आबिद अंकल हैं. तो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. मैं बहुत ज़्यादा बहुत सारे हैं. मैं एक से कहाँ से शुरुआत करूँ. अभी तो मुझे पहले सूफी पढ़नी है वो मैंने नहीं पढ़ी है तो मुझे वो पहले पढ़नी है. पर किताबें तो हमारा ख़जाना है और मुझे लगता है कि हम हर एक के पास वो ख़जाना होना चाहिए क्योंकि मैं एज अ एक्टर और एक इंसान कहाँ से किरदार लाऊंगी. किताबों से ही बहुत सारे किरदार मेरे जो है वो जो निकलते हैं. तो बस वही जैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सेकंड पार्ट बहुत मिस किया जा रहा है आपको और आपने देखा तो कैसा लगा. कैसा रिस्पॉन्स है आपको जो मिल रहा है?
नहीं, रिस्पॉन्स तो मिस कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स? हाँ, मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि वो लोग सुभद्रा को मिस कर रहे हैं, पर सीज़न 2 भी काफ़ी हद तक उसको सराहा गया है, काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग, तो अच्छा है। किरदार की मतलब जर्नी सीज़न 1 में ख़त्म हुई है, पर शायद दूसरे किरदार की जर्नी अभी शुरू हो जाएगी, तो आप उसको भी पसंद करें, मेरी आपसे आशंका है। किया गया है सेकंड पार्ट में, लोग बोल रहे हैं कि स्लो है स्टोरी। अच्छा, ये हो रहा है, उसका क्या करें? अब हर एक का एक अपना नज़रिया देखने के लिए, अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती। जैसे सीज़न 1 के लिए भी काफ़ी ये किया गया था, पर इट्स ओके, मतलब हर एक को अपना अपना जो जिसको जो पसंद है वो, पर मुझे लगता है सराहा ज़्यादा गया है। क्रिटिसिज्म तो इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, सो इट्स ओके। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने किताब ली? आज आबिद जी की जो बुक लॉन्च हुई है सूफी, क्या कहना चाहेंगे? कितना टची था और जो स्टोरीज जो है जी जी अनोखी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है उनकी, जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में तो बाद में कहूँगा, लेकिन आबिद सर के बारे में कहना चाहूँगा कि मैं जब 8 साल का था और ऐसे ही जैसे उन्होंने अपनी कहानी बताई कि वो कबाड़ी की दुकान से कुछ, लेकिन ऐसे ही मेरे हाथ एक कोई मैगजीन लगी थी, उसमें डब्बू जी का एक कार्टून स्ट्रिप उनका आता था, तो मैंने वो पढ़ा था पहली बार। 8-10 साल का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बहुत छोटा था उस वक्त। तो वो पूरी वो भी याद है मुझे कि डब्बू जी उसमें किसी को समझा रहे हैं कि हेल्दी रहने के लिए आपको रोज़ाना इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। सामने वाला से पूछता, डब्बू जी आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? तो बोले मैं सोच रहा हूँ मैं कल से शुरू कर दूँ। तो वो इतना मुझे उसने प्रभावित किया था कि ह्यूमर भी है अपने आप में, सटायर भी है। तो तब से मैं आबिद सर का फ़ैन हूँ 10 साल की उम्र से, और आज ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके बुक लॉन्च में यहाँ उनके हाथ की ऑटोग्राफ बुक मुझे रिसीव करने का मौका मिला है। जहाँ तक किताब की बात है वो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, पहली फुर्सत में इसको पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचा सकूँ और लोग पढ़ें इसको, क्योंकि पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि ये पढ़ाई का दुश्मन मोबाइल हाथ में आ गया है और इसने इस खजाने से सबको दूर कर दिया है, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। मैं भी दूर हो गया हूँ इस मोबाइल की वजह से। और कोशिश यही है सबके लिए भी, अपने लिए भी, कि थोड़ा सा इससे कट ऑफ करके थोड़ा सा इस तरफ आएँ। इस खजाने में बहुत कुछ है, ज़िंदगी के नज़रिए बदल जाते हैं। कोई एक किताब आपका सोचने का नज़रिया बदल देता है और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, किताबें पढ़ें, किताबें बहुत ज़रूरी हैं, किताबें हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। रियल लाइफ आप कितना बुक मतलब रीड करना पसंद करते हो, किस टाइप के पढ़ना चाहते हैं? मैं आपको सच बताऊं, मैं छोटे शहर से हूँ, सहारनपुर से हूँ, और वहाँ पर जब मेरा बचपन गुजरा तो एंटरटेनमेंट का एक ही साधन था, किताबें। तो मैंने शुरू किया था स्ट्रीट लिटरेचर से, वेद प्रकाश शर्मा के नावल में पढ़ता था, और वो पढ़ते पढ़ते फिर मेरे पढ़ने में बहुत इतनी रुचि जगी कि मैं इंटरमीडिएट तक आते आते काफ़ी बड़े बड़े राइटर्स पढ़ डाले थे। मतलब मंटो मैंने 12वीं क्लास के दौरान पढ़ लिया था, या मेरा फेवरेट राइटर मैक्सिम गोर्की रशियन, वो मैंने तब पढ़ लिया था। फिर जो जब जहाँ मौका मिला पढ़ने का, मैं पढ़ता गया, और मैं आज जो भी हूँ, जितना भी एक एज ए ह्यूमन बीइंग जितना भी मैं मेंटली ग्रो किया हूँ, वो उसी पढ़ाई की वजह से ग्रो कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं पढ़ पाया, ऐसे माहौल में रहा कि किताबों से मेरा राब्ता रहा। तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि हम इससे कटे नहीं। एक बहुत बड़ी चीज़ है किताबें, चाहे उसको किसी भी वर्जन में पढ़ें, भले ही आप वो डिजिटल किंडल कैसे भी पढ़ें, किताबें पढ़ें, बहुत ज़रूरी हैं। अभी थोड़े पहले जिक्र हुआ था कि इस पे मूवी भी बनने वाली है, बहुत जी, अच्छा उम्दा बनेगी। सो ऐसा कोई कैरेक्टर इसमें जो आप स्पेशली ऐसा प्ले करना चाहें, ऐसा कोई? देखो, मैं तो इतना लालची किस्म का इंसान हूँ, यही कहूँगा कि आबिद सर वाला रोल मैं करूँगा, तो मैं क्यों बोलूँ कि मुझे उसमें कहीं साइड में घुसा दो। और मेरे दिमाग में तो इनका जो पानी वाला जो इनका मिशन है, जो घर घर जाके बूंद बूंद जो बचाते हैं, और कितने मिलियन लीटर पानी बचा चुके हैं, वो सब्जेक्ट, वो जब से मैंने सुना है तो मुझे लगता है कि उस सब्जेक्ट के अंदर एक कहानी है, एक अचीवर की कहानी है जो पर्दे पे आनी चाहिए। और मैं तो इनसे 1-2 बार मिला भी हूँ इस लालच में कि कभी ये इस कहानी पे बने तो मैं आबिद सर वाला रोल करूँगा। थोड़ी दाढ़ी बढ़ा के सफ़ेद हो जाएगी तो मैं वो रोल करना चाहूँगा।
ओके सर, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप कोई शेयर करना चाहेंगे आपके यहाँ? अभी मेरी फिल्म नक्काश आप लोगों ने देखी थी, वही घूम रही है थोड़ा इधर उधर। अभी उसी की कोशिश जारी है, किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आए लोग देखें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा फिल्म अभी आ रही है, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर्स ने पट्टा बांधा है, नहीं बता सकता नाम, थोड़े दिन में बता दूंगा। उसके अलावा एक वेब सीरीज़ आ रही है हसमुख नेटफ्लिक्स पे, वो आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छी कोशिश है और आपको मज़ा आएगा उसे देखने में। थैंक यू इसका रियल लाइफ से इंस्पायर है, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको इस नॉवल से? जरा रिपीट कीजिए सवाल, सुनाई। बहुत ही यूनिक स्टोरी है इसकी, हाँ। रियल लाइफ से इंस्पायर है, तो आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है इससे? एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं लिखते हम लिखते हैं हमारी खुशी के लिए। अब इट डिपेंड्स ऑन पीपल हाउ दे एक्सेप्ट इट। जी, और सर जिस तरह से इसका कवर पेज है जो डिज़ाइन किया गया है, जी। इसके पीछे कुछ खास वजह? उसमें उन लोगों ने, दिस इज डिज़ाइन बाय पेंगुइन, और जैसे दो बच्चों की कहानी है जो कैसे आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, तो कवर डिज़ाइन पर उन्होंने दो बच्चों के डिज़ाइन बनाई है। ओके सर, हमने अभी थोड़े टाइम पहले बात की थी श्रीराम राघवन जो डायरेक्टर है जी, जी। कि इस पे बुक बननी, ये फिल्म बननी चाहिए चाहिए, और वो उन पे सोच भी रहे। तो आपके हिसाब से ऐसा कोई कैरेक्टर जो परफेक्ट प्ले कर सकते हैं आपका या दूसरे का जो कैरेक्टर है? अब ये बड़ा मुश्किल काम मेरे लिए, मैंने कभी उस पहलू पर सोचा ही नहीं कि कभी इसकी फिल्म बनेगी और उसमें कौन हीरो बनेगा। मेरा काम एज ए राइटर लिखना है और मैं लिखता चला जा रहा हूँ। ओके, अभी सर ये शायद तक थर्ड लैंग्वेज होगा, पहले गुजराती, हिंदी, अब इंग्लिश। आगे कोई और लैंग्वेज जिसमें आप डब करना चाहे या लिखना चाहें? नहीं, ये तो मतलब पिकअप होती है, जैसे मेरे और उपन्यास है जो गुजराती में लिखे थे, ओरिजिनल गुजराती से हिंदी में, इंग्लिश में और इंडिया की कई ज़बानों में। जैसे काली किताब का मैंने अभी जिक्र किया था, तो वो काली किताब जो है दुनिया की इंग्लिश में भी आई और 7 और ज़बानों में आई, प्लस केरला में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का उसको अवार्ड भी मिला। सभी लोगों का बुक में यही मैसेज है कि वो काम करो जो आपका मन कहता है। दूसरा ये है कि आप ब्लाइंड फॉलो मत करो किसी को भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे मुल्ला पंडित हो, जो भी हो। आप डिसाइड करो कि भाई आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर उनकी लकीर पर चलोगे, मे बी वो सही हो, मे बी वो गलत भी हो, तो आप फंस जाते हैं। थैंक